Ma'am, welcome to Chanakya Forum. Wow, it's a lovely office as I can see. It's a small office, but I'm glad that you liked it. This is our main conference room, Okay, and it's called Rizangla. Rizangla represents the battle honor of 13 Kumar Regiment. okay. Major Shaitan Singh, Battle of Rizangla, where we fought the Chinese in 1962. This is our small newsroom. So this is Dharma Rakshati Rakshita. So Dharma protects those who protect Dharma. So the path of righteousness. This is, I want to send it to the Ministry of Finance. Okay. From the strength of the treasury, the army is born. This is what Chanakya said. Is there a reason why you've called your firm as Chanakya Forum? Chanakya was the first Indian who imagined this concept of a unified Bharat in the face of the Greek invasion. He was the person who got everybody together and he says, you must be united. Or his thoughts are the driving force behind our organization. In the month of December, in 1971, we fought against the Pakistan army and we defeated 2 units of the Pakistan army and, they surrendered to us at Bhaduria. Bhaduria is now in Bangladesh. Yeah. So earlier East Pakistan. So this is the Battle of Bhaduria. And So hints of army life still exist in the way of your working, even in the corporate world. yeah. It's I very, know that we are not as disciplined as the army. even when we leave the army doesn't leave us. It's still inside somewhere. So yeah, this is a map that we have. तो इनमें से हमारा फ्रेंड कौन है, हमारा दुश्मन कौन है? फ्रेंड कोई भी नहीं है. दुश्मन ये है और दुश्मन ये है. दोस्त जो आपका है, फ्रेंड, a reliable partner. Your reliable partner is this. This is the state of Israel. This, France. These are reliable long-term partners. पर अब भी आप पंक्चुअल रहते हैं जहाँ जाते हैं. मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ. शॉपिंग के लिए भी जाएंगे तब भी. I don't know. I start feeling very uncomfortable that I've done. मैंने कुछ गुनाह कर दिया है या मैंने बहुत कुछ क्राइम हो गया बस. And it's all in the head actually. ऐसा कुछ है नहीं. I mean आप मॉल जा रहे हो. हाँ जी. ठीक है. You're going to the mall or you're going to South X or you're going to Connaught Place for shopping, but वो चीज है कि मेरे साथ I get very uncomfortable. थोड़ा सा डिले हो जाता है. That's all thanks to the army. Welcome. This is my cabin. This is where I sit. यहाँ पे शिव परिवार है और यहाँ पे फादर की फोटोग्राफ है. I'm sure he must be feeling very proud of you. Yes, I with do all hope. your achievements. What is more satisfying, your army job or what you're doing now for the country? No, the army any day. That's something that I'll always carry with me with a great deal of pride. Yeah. So yes. How are you assessing the relationship or the situation between India and Pakistan? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे ऑफिस आए. It's a pleasure to host you. पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप लड़ाई नहीं लड़ सकते. War is also a function of economics. It's also a function of money. बिना पैसे के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते. अगर कोई सोचे कि हमारे पास सिर्फ जज्बा है और that is like saying that my car does not have gas, only fumes and I'll run a race on fumes of petrol. It doesn't work like that. तो खैर पाकिस्तान ने कोशिश करी, फिर पाकिस्तान पैरों पे लेट गया अमेरिका के और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया. वहां पे भी उसने नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान, टर्न बाय टर्न होते हैं. तो पाकिस्तान ने फिर जाके वहां पे अपनी गुहार लगाई और उनसे भी पाकिस्तान को फटकार पड़ी. क्या तुम बताओ ये लश्कर तैयबा का क्या चक्कर है और तुम ये बताओ कि तुम लोग न्यूक्लियर सेवर रैटलिंग इतनी क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंट क्या है. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को काफी डांटा डपटा. ट्रंप को ये ओपनिंग दिखी, पाकिस्तानियों ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करा और क्योंकि ट्रंप ने इतने फेलियर देखे थे, कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, तो ट्रंप ने बोला ठीक है. ट्रंप लिसन्ड. 3:30 बजे पाकिस्तान ने इनिशिएट करा कॉल टू आवर DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के हैं. वी फेल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि हमने पनिश कर दिया है पाकिस्तान को जितना हमने करना था. लोगों के दिल में रह गई थी हसरत कि और थोड़ा होना चाहिए था. मेरे खुद के दिल में हसरत थी कि अभी कुछ 10-15 दिन मरम्मत और होनी चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं और सीज फायर हो गया. उसके बीच में क्या हुआ कि चाइना का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर. एक बात आपके जितने भी दर्शक हैं वो भी समझ लें कि पाकिस्तान ऐतिहासिक तौर पे एक डबल गेम खेलता है और वो पाकिस्तान का सेकंड नेचर है. जब आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि रूस हमारा दोस्त है, लेकिन 1979 और 89 के बीच में पाकिस्तान के मदरसों में जो जिहाद पढ़ाया गया वो रूसियों के खिलाफ
पढ़ाया गया था, जबकि वो रूसी अफगानिस्तान में थे। यूएसएसआर हुआ करता था उस वक्त, सो दे वर इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान तब से डबल गेम खेल रहा है। तालिबान से पैसा लेके अमेरिकन सोल्जर्स को मरवाया, अमेरिकन सोल्जर से पैसा लेके तालिबान को मरवाया। ये सारा काम पाकिस्तान करता चला है। पाकिस्तान ने यहां पे भी डबल गेम खेला। चीन को बताया नहीं, अमेरिका के पैर पे लेट गया, वहां पे अमेरिका के पैरों पे लेटा, सीज फायर के लिए अग्री कर गया। वहां से चाइना का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर कि पैसा ले लो, ड्रोन ले लो, हथियार ले लो, सीज फायर मत करना, इंडिया के ऊपर प्रेशर डालो। पाकिस्तान ने 4-5 घंटे के अंदर फिर से सीज फायर वायलेट कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने प्रॉमिस करा था, और हमारे मीडिया ने कवर करा है, ड्रोन आ रहे हैं, ये सब दिखा वहां पे। मैं आज आपकी शो पे, जिसको कहते हैं ना, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि दिस विल नॉट होल्ड। ये सीज फायर होल्ड कर ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। कोई बोल दे कि शांति हो जाए, देयर विल बी वायलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन।